السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فوج پر تنقید کی جا سکتی ہے مگر سرخ لکیر عبور نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر پارٹی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لے سکتی ہے اور بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف انٹرویو دیتی ہے تو اس کا رد عمل فطری ہے۔ انہوں نے عمران خان اور ان کی ہمشیرہ کی بھارتی میڈیا سے گفتگو کو کشیدہ حالات کی ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ سوشل میڈیا پر ہونے والے اقدامات پر پی ٹی آئی کی خاموشی قابل تشویش ہے۔ ڈرگ فری لاہور مہم کے تحت پولیس کے انسداد منشیات آپریشنز جاری ہیں۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال اب تک 11,423 منشیات فروش گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ 5,340 کلو چرس، 1,150 کلو آئس، 573 کلو ہیروئن، 310 کلو افین اور 60,683 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ نے منشیات فروشوں، سمگلرز اور آن لائن نیٹ ورکس کے خلاف مزید سخت کارروائیوں، تعلیمی اداروں کے اطراف نگرانی بڑھانے اور نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے والدین اور اساتذہ کو مؤثر کردار ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آئی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والے غازی اہلکاروں کے بہترین علاج معالجے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے لاہور سمیت مختلف اضلاع کے زخمی اہلکاروں کے لیے مزید 19 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ ترجمان کے مطابق زخمی اے ایس آئی سلیم اختر کو 10 لاکھ، ہیڈ کانسٹیبل لیاقت علی کو 4 لاکھ، اے ایس آئی امانت علی کو 2.5 لاکھ، کانسٹیبل محمد یاسین کو 2 لاکھ اور کانسٹیبل عصمت سعید کو 50,000 روپے دیے گئے۔ یہ منظوری ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس عمران ارشد کی زیر صدارت کمپنسیشن ایوارڈ کمیٹی نے تھی، جبکہ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ غازی اہلکاروں کا بہتر علاج اور جلد بحالی اولین ترجیح ہے۔ ایس ایس پی سٹی بلال احمد کی سربراہی میں گٹکا مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بادامی باغ پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر گٹکا تیار کر کے فروخت کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 25 گیلن 900 کلو لیکوڈ گٹکا بھی برآمد ہوا ہے، جو لاہور کے مختلف علاقوں میں پابندی کے باوجود سپلائی کیا جا رہا تھا۔ ملزمان ٹرانسپورٹس اور رکشوں کے ذریعے ترسیل میں ملوث تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ ایس پی سٹی نے کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او بادامی باغ احسن جسپال اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے گٹکا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر شہر بھر میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,009 تجاوزات اور 2656 غیر قانونی تشہیری مواد ہٹا دیے گئے۔ بلدیہ اعظمہ لاہور نے فٹ پاتھ اور تجارتی مراکز کو تجاوزات سے پاک کر کے شہری نقل و حرکت اور ٹریفک روانی بہتر بنائی۔ تاریخی عمارتوں کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ آپریشنز اور سرویلنس جاری رہنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ صادق آباد میں احمد پور لمحہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ناکہ بندی کے دوران مشکوک موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ ہلاک ملزمان کی شناخت جاری ہے، جبکہ ان کے قبضے سے موٹر سائیکل، رائفل اور پسٹل بھی برآمد کیا گیا۔ لاشیں ہسپتال منتقل کر کے قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہیں۔ ڈی پی او عرفان علی سمو نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ صادق آباد میں گورنمنٹ گرلز ایم سی ہائی اسکول میں اسپائر پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب شاندار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں سی ای او رحیم یار خان ملک محمد عامر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جبکہ سی ای او نے منصوبے کو طالبات کے لیے جدید مہارتوں، خود اعتمادی اور قیادت کی تربیت کا مؤثر پلیٹ فارم قرار دیا۔ اس موقع پر تحصیل لیول انٹر ڈسٹرکٹ سپورٹس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کی میزبانی پرنسپل منزہ محمود نے کی اور آخر میں معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او فراز احمد کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی عملداری اور آگاہی کے لیے ضلع بھر میں مہم جاری ہے۔ نماز جمعہ کے بعد مساجد کے باہر 2,000 سے زائد شہریوں میں ٹریفک آگاہی پیمفلیٹس تقسیم کیے گئے، جبکہ ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور دیگر پولیس افسران نے شہریوں کو صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 4تھی ترمیم کے تحت قوانین سے آگاہ کیا۔ ڈی پی او کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اولین ترجیح ہے۔
साहिवाल में DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल में ट्रैफिक आगाही सेमिनार में शिरकत करते हुए तलबा और तलबात को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, जिम्मेदाराना ड्राइविंग और हादसा से बचाव पर तफसीली आगाही दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर पंजाब के विजन के तहत ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी और कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। नौजवानों ने ट्रैफिक एम्बेसडर्स करार देते हुए पैगाम अपने घरों और मुआशरे तक पहुँचाने की तलकीन की है, जबकि हेलमेट के इस्तेमाल, लेन की पाबंदी और कम उम्र ड्राइविंग से इज्तनाब की हिदायत भी की गई है। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल की हिदायत पर शहरी सहूलियात में इजाफे के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2 बड़े तरक्याती मनसूबों का आगाज़ कर दिया, जिसमें झाल रोड म्यूनसिपल स्लोटर हाउस की अपग्रेडेशन और तज़ीन व आराइश के लिए 3 करोड़ से ज़ायद, जबकि स्टेडियम, कैफ़े, यादगार चौक की बेहतरी और तामीर के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मंसूबों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स से टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, जो 22 दिसंबर को खोले जाएंगे। कसूर में थाना राजा जंग के इलाके और स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान वारदात करके फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू मुतअद्दिद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद किया गया, जबकि फरार होने वाले साथियों की गिरफ्तारी के लिए SHO अली अकबर की सरबराही में टीम तश्कील दी गई है। सियालकोट में DPO फैसल शहजाद के नोटिस पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग और खतरनाक स्टंट करने वाले मरकजी मुलजिम हुसैन अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक शहरियों की जान खतरे में डालने वाली वन व्हीलिंग और स्टंटबाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंग में मंडी शाहजियोना के इलाके नवीद टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां घर के अंदर कायम मुबैना गैर कानूनी क्लिनिक पर दिए गए गलत इंजेक्शन से एक कमसिन बच्चा जाबहक हो गया। अहले इलाका के मुताबिक हताई डॉक्टर जफर और इसका अंडर मैट्रिक भाई असगर बतौर कंपाउंडर काम कर रहा था। बच्चे की हालत बिगड़ने पर इसे DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन को वजह करार दिया। वरसा और शहरियों ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और हताइयों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। जंग में एक निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं इमरान गुल की रिपोर्ट में। जंग के निजी तालीमी अदारे में सजाया गया स्पोर्ट्स गाला बच्चों के चेहरों पर खुशियां बखेर गया। स्पोर्ट्स गाला में दौड़, रस्साकशी और क्रिकेट समेत मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स शामिल थे। बच्चों ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। तुलबा का कहना था कि हमारी अच्छी तैयारी थी, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। ऐसे इवेंट से हम में खेलों का शौक बढ़ता है और हम मजीद अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। मेरा नाम मरियम है और मैं ऑफिसर स्कूल से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स है, हमें बहुत मज़ा आया है। ये स्पोर्ट्स 12 होते रहे, हम लोग फ्रेंड्स। मैं मैथ्स 3 क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने रेस में हिस्सा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरबरा अदारा का कहना था कि हम हर साल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद करते हैं ताकि बच्चों के नसाब के साथ साथ सेहतमंद सरगर्मियों के मौके भी फराहम किए जाएं। हमारा मकसद है कि तुलबा में टीम वर्क, डिसिप्लिन और खुद एतमादी को फरोग दिया जाए। और 24 घंटों में 1 घंटा हमें ज़रूर ग्राउंड में देना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी नेशन की इस वक्त एवरेज एज कम हो रही है। अगर आप पाकिस्तानियों की एवरेज एज देखें जो कि अभी अराउंड 50 हो चुकी है, और जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे एवरेज एज 90 ईयर्स आ रही है। तो अगर हम भी रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 1 घंटा ग्राउंड में देंगे तो इंशाल्लाह इससे हमारी नेशन की एवरेज एज भी बढ़ेगी और हमारी कौम की ना सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होगी बल्कि मेंटल ग्रोथ भी होगी। स्पोर्ट्स गाला का मकसद सिर्फ जीत या हार नहीं, बल्कि बच्चों को सेहतमंद मुकाबले, नज़्म ज़ब्त और बाहमी तावन का शऊर देना है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, जंग। सजावल में माजूर अफराद की फलाही तंजीम मोरेट्रो सेंटर के ज़ेर एहतमाम एक सकाफ़ती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ख़ुसूसी बच्चों, असातिज़ा, वालिदैन और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद ख़ुसूसी अफराद की हौसला अफजाई और उनकी सलाहियतों को उजागर करना था। जो दिन है सिंध की सकाफ़त का कल्चरल डे, उसको हम बोरडो मरकज़ की जानब से मना रहे हैं।
सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन के हवाले से हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो इस दिन को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। सुबह से वो रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में आए हैं, यूँ समझे कि वो टोपी, अजरक, ये सारी चीज़ें जो सकाफ़त से रिलेटेड है वो पहन कर आए हैं और ये बता रहे हैं कि ये इनका दिन खुशी का दिन है, ईद का दिन है, जिसमें वो बच्चे भी अपनी सकाफ़त को, अपने जो तहज़ीब है उसको उससे प्यार करते हैं। तो हम शुक्रगुज़ार हैं सारे मीडिया वालों का भी कि वो आए हैं हमारे प्रोग्राम में और उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। जी, सबसे पहले तो ये मीडिया ग्रुप वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने मोरोड़ मरकज़ सजावल के अंदर जो माज़ून की बहाली के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इदारा जहाँ पे काम कर रहा है, उन्होंने यहाँ पे आकर ये कल्चर डे सेलिब्रेट किया है। तो कल्चर डे सेलिब्रेट करने का मकसद ये होता है कि हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी माजी जो है वो कितनी शानदार थी। जिस तरह से हमारे पास मोहनजोदड़ो है, अपनी सिविल सिविलाइजेशन है हमारी, तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक रिच कौम है हमारी सिंधी। तो हम ये पैगाम पहचानना चाहते हैं कि सिंधी एक जो है वो मेहमान नवाज कौम है, एक पुरअमन कौम है और एक जो है हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी 5000 साल पहले जिस तरह से हमारी कौम थी, हम उसी तरह से आज भी अब हमारा जो पुरअमन खित्ता है जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजारे हैं। तो एक मरतबा फिर मैं अपने सहाफ़ी बरादरों का बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने यहाँ आके हमें ये बोलने का मौका दिया। मोरोड़ मरकज़ सुजावल की तरफ से यहाँ एक सकाफ़ती प्रोग्राम किया जा रहा है। सिंध की सकाफ़त बहुत ज़्यादा पुरानी है। उसकी सकाफ़त का ताल्लुक़ मोहनजोदड़ो से है जो 5000 पुरानी एक तहज़ीब है। सिंधी कौम एक महज़ब कौम है। इस सकाफ़त के दिन मनाने का मकसद ये है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ये सकाफ़त उन तक पहुंचती रहे और वो अपने सकाफ़त पे फ़ख्र कर सकें। हम सबको इस सकाफ़त पे फ़ख्र है कि हम इतनी आला, उम्दा और पुरानी सकाफ़त के मालिक हैं। तहसील ओबाड़ू के रिहायशी को मुबैना तौर पर दोबारा अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकार गुज़श्ता 4 साल में 50 लाख रुपए वसूल कर चुके हैं, जबकि ज़मीन के मुतालिबे पर शाहज़ैन शाहिद की मुबैना धमकियों के बाद ये वाक़या पेश आया। कारी अब्दुल वाहिद 6 माह से लापता थे और 2 रोज़ कबल उनकी एक वीडियो मंज़र-ए-आम पर आई है, जबकि उनसे आखिरी मरतबा 22 मिनट तक फ़ोन पर बात होने की भी तस्दीक की गई है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।